Now let us go to treatment of Cushing's, the flow chart. Management of Cushing's disease. ACTH, okay, so Cushing's disease बोला. Cushing's disease मतलब we know that this is an ACTH dependent hypercortisolism. So पिट्यूटरी MRI करो, पीट्रोसल साइनस ACTH सैम्पलिंग करो, ठीक है. और अगर तुम कंसिडर चेस्ट एब्डोमेन इमेजिंग करके तुम एक्टोपिक ACTH वाला एक्सक्लूड कर दो. चेस्ट एंड एब्डोमेन क्यों? चेस्ट बिकॉज ब्रोंकियल कार्सिनॉइड एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड थाइमोमा में कॉमन है, एंड एब्डोमेन में एब्डोमिनल कार्सिनॉइड. दैट्स इट. तो ठीक है, अभी ये सब में अगर तुमको मिल गया ACTH सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, नेक्स्ट क्या करोगे? ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द एडिनोमा करोगे, ठीक है. अगर बायोकेमिकल क्योर हो गया, सब निकल गया, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इफ़ नीडेड, और फिर फॉलो अप रखना सीरियल बायोकेमिकल एंड MRI इवैल्यूएशन, ठीक है. अगर ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन से नहीं हुआ, persistent hypercortisolism है, so now you have different options. पैसिरियोटाइड एंड और पैसिरियोटाइड है सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, तो स्टॉप करेगा बराबर इनिबिटरी, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड और स्टीरॉयडोजेनिक इनिबिटर्स एंड और पिट्यूटरी इरेडिएशन. पिट्यूटरी इरेडिएशन से भी नहीं हुआ, परसिस्ट हो रहा है, तो एड्रिनलेक्टमी कर दो, क्योंकि कॉर्टिसोल तो अल्टीमेटली वही ये कर रहा है, ठीक है. रेडिएशन इज लास्ट ऑप्शन एंड एड्रिनलेक्टमी इज द उससे भी लास्ट ऑप्शन, ठीक है. पैसिरियोटाइड इज ऑक्ट्रियोटाइड एनालॉग. फाइन. सो ट्रीटमेंट ऑफ Cushing's disease, I'm reading it now. Selective transfinoidal resection is the treatment of choice in Cushing's disease. Highlight कर दो. Fine. The remission rate for this procedure is 80% in microadenomas and less than 50 for macro. However, surgery is rarely successful when adenoma is not visible. ये कुछ मार्क नहीं कर रही मैं. After successful tumor resection, most patients experience a post-operative period of symptomatic ACTH deficiency, right, that may last up to 12 months. This requires बराबर ना ACTH deficiency हो जाएगा. This requires low dose cortisol replacement as patient experience both steroid withdrawal symptoms as well as have suppressed hypothalamo-pituitary adrenal axis. Biochemical recurrence occurs in 5% in whom surgery was initially successful. जान दो. Next, when initial surgery is unsuccessful, repeat surgery is sometimes indicated when the pituitary source, अगर pituitary ही well documented है तो वहीं से एक बार repeat surgery कर दो. In older patient in whom issues of growth and fertility are less important, तो hemi या total hypophyseectomy may be necessary if the discrete pituitary adenoma is not recognized. अच्छा, पहले तुम से वो adenoma एक्सरसाइज करो, फिर भी अगर रिकर हो गया और ओल्ड एज है और उसको फर्टिलिटी वगैरह नहीं चाहिए, तो पूरा पिट्यूटरी निकाल लो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ टिश्यू रह जाता है हर बार. पिट्यूटरी इरेडिएशन में बी यूज्ड आफ्टर इनसक्सेसफुल सर्जरी, बट इट क्योर्स ओनली 15% पेशेंट्स बिकॉज इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर स्लो, नंबर 1, एंड ओनली पार्शियली इफेक्टिव इज नंबर 2. तो स्लो है, पार्शियली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इनइफेक्टिव है. दैट इज वाई स्टीरॉयडोजेनिक इनिबिटर्स आर यूज्ड in combination with pituitary irradiation to block the adrenal effects of the persistently high ACTH level. The first is pasireotide. Just highlight pasireotide, 600 to 900 microgram per day subcu. Pasireotide. Okay, it is a somatostatin analog. High affinity for SST5. हाँ, ये अपन ने पहले भी देखा था कि SST5 को particularly ज़्यादा affinity है more than SST2. It may control hypercortisolemia in a subject of patient with ACTH secreting pituitary tumor when surgery is not an option or has been unsuccessful. बराबर. In clinical trials, the drug lowered the ACTH level and normal the 24-hour urinary free cortisol in 20% of patient and resulted up to 40% of mean tumor shrinkage. ठीक है, ये सब परसेंटेज याद रखने का जरूरत नहीं. साइड इफेक्ट्स इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, ये मार्क कर लो. Hyperglycemia and diabetes in up to 70% patient likely due to suppressed pancreatic secretion of insulin and incretin. This is ultimately तो somatostatin analog है, तो insulin और incretin को भी कम कर दिया इसने, इसलिए hyperglycemia and diabetes. Because patients with hypercortisolism are insulin resistant, okay, hyperglycemia should be rigorously managed. Other side effects are similar to those encountered for other somatostatin analogs such as transient abdominal dysfunction. सारे अपने GI वाले अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे. डायरिया, नोशिया, गॉलस्टोन्स. ड्रग रिक्वायर्स कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन.
GI side effects. So same drug, just use a highlighter. Now you will highlight pasireotide as 600 to 900 micrograms per day subcute. It is a somatostatin analog. SST5 more than SST2. Side effects are hyperglycemia and diabetes because of suppressed pancreatic secretion of insulin and incretin. Other side effects are transient abdominal dysfunction, diarrhea, nausea, gallstone, and this requires long-term administration. Next paragraph. Next drug is ketoconazole. I'm just highlighting the drugs right now. Ketoconazole, mifepristone, mitirapone, mitotane in the same paragraph itself. Other agents वही paragraph में last में जो देते नहीं हैं, I'm not highlighting that. Okay, कर लो. Aminoglutathione, trilostane, cipraheptidine and IV etomidate. Okay. Fine. So now let us go into detail of each drug. Ketoconazole is an imidazole developed elevating antifungal agent, antimycotic. Inhibits, yes we know, inhibits several P450 enzyme and lowers the cortisol in most patients with Cushing disease. It is to be administered twice daily, 600 to 1200 mg per day. Elevated hepatic transaminases, gynecomastia, impotence, GI upset and edema are common side effects. So ketoconazole antifungal है, inhibits several P450 enzyme, it lowers the cortisol. ठीक है. Twice daily 600 to 1200 mg per day है. Elevated transaminases, gynecomastia, impotence and GI intolerance and edema. Mifepristone is a glucocorticoid receptor antagonist. Blocks the peripheral cortisol action and is approved to treat hyperglycemia in Cushing's disease. So mifepristone is a glucocorticoid receptor antagonist. Because the drug does not target the pituitary tumor, both ACTH and cortisol level will remain high. बराबर. This is similar to pegvisomant used in acromegaly. वो भी सिर्फ रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, GH लेवल हाई ही रहते हैं, सिर्फ IGF कम हो जाता है. सिमिलरली इसमें भी सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो ACTH एंड cortisol level will remain high. Side effects are largely due to antagonism of steroid action. तो hypokalemia, endometrial hyperplasia, hypoadrenalism and hypertension. Okay. Hypokalemia, endometrial hyperplasia, mifepristone है तो, and hypoadrenalism and hypertension. फिर mitirapone is an inhibitor of 11 beta hydroxylase activity. It normalizes the plasma cortisol in 75. Side effects mark कर दो, nausea, vomiting, rash, exacerbation of acne and hirsutism. So mitirapone के दो ही पॉइंट मैंने हाईलाइट किए. Inhibits 11 beta hydroxylase activity. Second, nausea, vomiting, rash and exacerbation of acne and hirsutism. Okay. Mitotane also inhibits 11 beta hydroxylase and cholesterol side chain cleavage and other cholesterol side chain cleavage enzyme, and by destroying the adrenocortical cells. इसका भी साइड इफेक्ट्स है, GI symptoms, dizziness, gynecomastia. ये सारों का gynecomastia साइड इफेक्ट रहेगा ही बिकॉज ये इनहिबिट कर रहा है, एंटी स्टीरॉयडल है. gynecomastia, hyperlipidemia, skin rash, इसका भी hepatic enzyme elevation है. It may lead to hypoaldosteronism, hypoadrenalism, सबका सेम रहेगा, hypertension. ठीक है. Other drugs are aminoglutathione, trilostane, cipraheptidine and IV etomidate. Just read it once again MCQ में rule out करने के लिए. Aminoglutathione, trilostane, cipraheptidine and IV etomidate. Glucocorticoid insufficiency is a potential side effect of all these drugs. The use of steroidogenic inhibitors has decreased the need for bilateral adrenalectomy. बराबर. Surgical removal of both adrenal gland corrects the hypercortisolism, but it is associated with significant morbidity because other भी तुम्हारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड कम हो जाते हैं, उसको परमानेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट लगता है. Adrenalectomy in the setting of a residual corticotropic adenoma predisposes to the development of Nelson syndrome, which is characterized by rapid pituitary tumor enlargement, increased pigmentation secondary to high ACTH levels. Prophylactic radiation therapy may be indicated to prevent development of Nelson syndrome after adrenalectomy. So let me see Nelson syndrome once again. So अगर तुमने adrenalectomy कर दिया, अभी उसका टारगेट ऑर्गन तुमने बंद कर दिया तो रिस्पॉन्स में वो और सेक्रेट कर रहा है. तो आफ्टर एड्रेनलेक्टमी देर इज इनफैक्ट रैपिड पिट्यूटरी ट्यूमर एनलार्जमेंट एंड इट कॉजेज इंक्रीज पिगमेंटेशन सेकेंडरी टू हाई एसी. कभी भी जितना ज़्यादा ACTH लेवल उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन, इसलिए एक्टोपिक ACTH में ज़्यादा ACTH लेवल है, इसलिए उसमें पिगमेंटेशन पहले प्रोमिनेंट है. सो प्रोफाइलैक्टिक रेडिएशन थेरेपी मतलब पिट्यूटरी को पहले से रेडिएशन देख के रखो, फिर एड्रीनल निकालो, विल बी इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ नेल्सन सिंड्रोम आफ्टर एड्रीनलेक्टमी.
Okay, so let me go through revised Cushing's disease for you once again. So turn the page. Cushing, so most common this thing is pituitary. So see, most common cause of Cushing syndrome पूछा तो it will be iatrogenic drug iatrogenic hypercortisolism. ठीक है. Cushing's most common endogenous cause of Cushing syndrome पूछा तो pituitary adenoma. ठीक है. Pituitary corticotroph adenoma, and whenever it is because of pituitary corticotroph adenoma, it is called as Cushing's disease. Other causes of ectopic tumor ACTH production, फिर है cortisol producing adrenal adenoma, adrenal hyperplasia and adrenal carcinoma, and rarely ectopic CRH production. ठीक है. तो ACTH प्रोड्यूसिंग तो अभी अगेन एक्टोपिक CRH प्रोडक्शन के लिए तुम रूल आउट करने के लिए तुम बेसलाइन CRH लेवल देखोगे. ठीक है. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ACTH प्रोड्यूसिंग की वजह से है कि एड्रीनल की वजह से है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम ACTH लेवल करोगे. सिंपल. नाउ ACTH प्रोड्यूसिंग एडिनोमाज आर मोस्ट कॉमन अकाउंट 10 to 15%. उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट विथ क्लासिकल फीचर्स, और इसलिए जनरली व्हेन यू डायग्नोज दे आर स्मॉल माइक्रो एडिनोमा भी हो सकते हैं. मोर कॉमन इन विमेन. ठीक है. दे विल बी हाइपोकॉर्टिसोलेमिया एंड हाउएवर अगर पिट्यूटरी वाला है तो दे विल रिटेन पार्शियल सप्रेसिबिलिटी, इसलिए लो डोज से सप्रेस नहीं होते, हाई डोज से सप्रेस होते हैं. लेकिन एक्टोपिक वाले हाई डोज से भी सप्रेस नहीं होंगे. लेट अस गो टू द क्लिनिकल फीचर्स टेबल. ओबेसिटी, वेट गेन, thin skin, moon face, hypertension, purple striae, hirsutism, acne, menstrual disorders, amenorrhea, plethora, abnormal glucose tolerance, impotence, proximal muscle weakness, truncal obesity, acne, bruising, mental changes में ऊपर लिखा था depression, mania and psychosis, osteoporosis, edema of lower extremities, hyperpigmentation, hypokalemic, ये नीचे जो लास्ट वाले है वो दे आर मोर कॉमन विद एक्टोपिक वाले. ठीक है. एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपोकलेमिक, अल्कलोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस तो है ही. ठीक है. तो ये जो लास्ट 3 है, इनफैक्ट नॉट लास्ट 4, लास्ट 3 आर सेकेंडरी टू मोर कॉमनली टू एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन. ठीक है. अदर फीचर्स ऊपर एक ये हाईलाइट कर दो, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोपीनिया एंड इओसिनोपीनिया. ठीक है. नेक्स्ट पेज. सो अगर पिट्यूटरी की वजह से है तो क्लासिकल सिम्टम्स है सेंट्रल हाइपोकॉर्टिसोलिज्म का. पैथोलॉजिकल कॉज है तो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, थिन स्किन, स्ट्राइप ब्रूजिंग, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस प्रोमिनेंट रहेगा. प्लस अगर यंग फीमेल में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस या चिल्ड्रन में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो भी तुमको अलार्म हो जाना चाहिए. प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ हाईलाइट करो इसको, इस कार्डियोवास्कुलर डिसीज. लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन एंड रिस्क ऑफ सुसाइड भी होता है. फिर अगर फटाफट स्किन पे हाइपरपिगमेंटेशन ज़्यादा है और मायोपैथी ज़्यादा है तो दैट इज़ वेरी हाई ACTH विच इज़ बिकॉज ऑफ एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन. सिमिलरली ये वालों में बाकी के सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपोकलेमिक अल्कोलोसिस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड एडिमा. पोटेशियम लेवल कम रहेंगे भी इन स्पेशली इन एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर. उसमें भी कम रहेंगे लेकिन इसमें ज़्यादा. ठीक है. लैब इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल. उसके बाद यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल देखा मतलब हाई है. उसके बाद आइडियली ACTH लेवल करना चाहिए कि ACTH की वजह से है या CRH की वजह से है या एड्रीनल कॉज की वजह से है. तो ACTH अगर हाई है तो फिर तुम ये डिसाइड करोगे कि पिट्यूटरी से ACTH प्रोड्यूस हो रहा है या एक्टोपिक कहीं और से. तो वो डिसाइड करने के लिए 1 मिलीग्राम ओवरनाइट, 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट. ठीक है. एंड एट द नादिर लेवल ऑकर एट नाइट, द मिडनाइट सीरम या सलाइवरी सैंपल इज द आइडियल. ठीक है. हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी ट्यूमर एंड ACTH प्रोड्यूसिंग अदर ट्यूमर्स. पहले तो पिट्यूटरी वाले कौन से हैं, पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रोप एडिनोमा, प्लूरी हार्मोनल एडिनोमास. या फिर एक्टोपिक में है मोस्ट कॉमन इज ब्रोंकियल कार्सिनॉइड, दूसरा है अब्डोमिनल कार्सिनॉइड, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड थाइमोमा. फिर ACTH पिट्यूटरी वाला मोर कॉमन इन फीमेल है और एक्टोपिक ACTH इज़ मोर कॉमन इन मेल. ऑफकोर्स लंग कैंसर मेल में कॉमन होता है ना. तो पिट्यूटरी वाला स्लोली आएगा, ये रैपिडली आएगा. स्किन पिगमेंटेशन एंड मायोपैथी फटक से लाएगा. सीरम पोटेशियम लेवल विल बी लो मोर ऑफन इन एक्टोपिक ACTH सेक्रेशन. 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल दोनों में हाई रहेगा. बेजल ACTH प्रोडक्शन दोनों में हाई रहेगा लेकिन एक्टोपिक वाले में ज़्यादा हाई. ठीक है. डेक्सामेथासोन सप्रेशन 1 मिलीग्राम ओवरनाइट. लो डोज इज 0.5 mg 6 hourly देना है रात में. तो उससे तो दोनों का सप्रेस नहीं होगा. कॉर्टिसोल विल बी मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर DL. लेकिन अगर हाई डोज दोगे 2 mg 6 hourly दोगे
तो पिट्यूटरी वाला सप्रेस हो जाएगा लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर डे, लेकिन एक्टोपिक तो सप्रेस होएगा ही नहीं, इवन यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल भी सप्रेस नहीं होगा. देन यू विल डू अ रेशियो ऑफ इन्फीरियर पीट्रोसल साइनस. अपने को सैम्पल लेना है, पहले तो बेसलाइन एक सैम्पल लेना है, 2 सैम्पल लेना है बेसलाइन इन्फीरियर पीट्रोसल साइनस का, वेन में से ACTH का लेवल एंड पेरिफेरल वेन में से ACTH लेवल. बेसलाइन सैम्पल अगर बेसलाइन ही मोर देन 2 है तो इट इज़ मोर लाइकली कि पिट्यूटरी एडिनोमा है और उसमें लेस देन 2 रहेगा. और फिर उसके बाद CRH देना है 1 माइक्रोग्राम पर kg. उसके बाद 2 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स पे लेना है. तो उसमें अगर मोर देन 3 आ जाता है तो इट इज़ कन्फर्मेटरी ऑफ पिट्यूटरी ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स. ठीक है. उसका एडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव एंड वेरी रेयर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कम है. एंड डिसएडवांटेज है कि अगर वीनस ड्रेनेज कुछ और है तो नहीं कर सकते. तुम न्यूरो में कर रहे हो, इन्वेजिव टेक्निक है. ठीक है. दिस कैथेटराइजेशन आर टेक्निकली डिफिकल्ट, न्यूरो कॉम्प्लिकेशन. फिर किस में नहीं कर सकते, पेशेंट विद हाइपरटेंशन में नहीं करना है, नॉन सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ है तो नहीं करना, पिट्यूटरी ट्यूमर दिख रहा है तो नहीं करना. ट्रीटमेंट में सिलेक्टिव ट्रांसफिनॉइडल रिसेक्शन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. फ्लो चार्ट में देख रही हूँ तो अगर ACTH डिपेंडेंट कॉर्टिसोलिज्म है, पिट्यूटरी MRI और पीट्रोसल वेना सैम्पलिंग पे कंफर्म हो गया है दैट इट इज़ एन ACTH सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, तो फिर ट्रांसफिनॉइडल सर्जिकल रिसेक्शन करना है. सर्जिकल रिसेक्शन के बाद यू हैव टू कीप चेकिंग द कॉर्टिसोल लेवल. कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल हो गए हैं तो यू मे गिव ग्लूकोकॉर्टिसोइड रिप्लेसमेंट अगर इफ़ नीडेड, अगर बहुत ही कम हो गया तो. और उसके बाद सीरियल बायोकेमिकल एंड MRI मॉनिटरिंग रखना है. लेकिन अगर सर्जरी के बाद कम नहीं हुआ तो योर नेक्स्ट लाइन विल बी सेकेंड सर्जरी. नेक्स्ट लाइन ओनली इन ओल्डर पेशेंट जिसको फर्टिलिटी नहीं चाहिए उनको तुम सेकेंडरी सर्जरी करके पूरा हाइपोफाइसेक्टमी कर सकते हो. अदरवाइज बेस्ट तो है अपना ड्रग्स, नॉन एंटी स्टीरॉयडल ड्रग या फिर ऑक्ट्रियोटाइड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग दैट इज़ पैसिरियोटाइड एंड अदर ड्रग्स. उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो यू मे ट्राई रेडिएशन, लेकिन रेडिएशन स्लो है, डैमेजिंग है, सेकेंडरी कार्सिनोमास हो सकता है. ठीक है. तो उससे भी नहीं हुआ है तो एड्रीनलेक्टमी. लेकिन एड्रीनलेक्टमी करने का साइड इफ़ेक्ट ये है कि नेल्सन सिंड्रोम हो जाता है, मतलब वो और नेगेटिव ये नहीं मिलता है तो और भी ये हो जाता है. ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर keeps on increasing and secretes more ACTH giving rise to rapid skin pigmentation. This is called नेल्सन सिंड्रोम. तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले पिट्यूटरी को रेडिएशन दे दो और फिर एड्रीनलेक्टमी कर दो. ठीक है. नेक्स्ट पेज. ठीक है. आई थिंक वी हैव अभी इसे ड्रग्स का डिटेल डिस्कस करना बाकी है. पैसिरियोटाइड इज 600 to 900 माइक्रोग्राम्स पर डे सब क्यू. दैट इज सोमैटोस्टैटिन एनालॉग. SST5 पे ज़्यादा एक्ट करता है मोर देन SST2. साइड इफ़ेक्ट्स आर हाइपोग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ पैनक्रेटिक सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड इनक्रेटिन भी कम कर रहा है. बाकी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया, नोशिया, गॉल स्टोन. ठीक है. लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन लगा. कीटोकोनाजोल एंटीफंगल है, इनिबिटर है सेवरल P450 एंजाइम का, ट्वाइस डेली देना है. इसका भी हिपैटिक ट्रांसअमाइनेज इंक्रीज होएगा. गायनेकोमास्टिया, इम्पोर्टेंस, GI अपसेट, इडीमा, सभी के साइड इफेक्ट सेम ही याद रखो. मिफेप्रिस्टोन इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. तो इससे ACTH लेवल को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और कॉर्टिसोल लेवल को भी नहीं. ठीक है. इट ओनली ब्लॉक्स द पेरिफेरल कॉर्टिसोल एक्शन. ठीक है. साइड इफेक्ट्स इज हाइपोकालीमिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, हाइपोएड्रिनलिज्म, हाइपरटेंशन. मिटाइरापोन एंड माइटोटेन, दे आर बोथ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज इनिबिटर्स. नोशिया, वॉमिटिंग, एग्जैसर्बेशन ऑफ रैश. ठीक है. माइटोटेन का इन एडिशन गायनेकोमास्टिया, हेपेटिक एंजाइम. अदर्स आर अमीनोग्लूटाथामाइड, ट्रायलोस्टेन, सिप्रोहेप्टेडिन, IV इटोमिडेट. Nelson syndrome we have discussed. So done with Cushing's disease.